morning students. I hope you all are fit and fine at your home. So as you know that we have completed the explanation of lesson number 12, reproduction in plants, and we have done some exercises also. Today I am going to explain you the answers of exercise G, that is long answer questions, and in this video I have covered only 4 questions. 4 questions you have to do today in your copy. Okay, so the first question is, what are the methods of vegetative reproduction? Methods of vegetative reproduction you have to write in this answer. Vegetative reproduction I have explained, it is the another term for vegetative propagation. जो vegetative propagation है उसी को ही हम vegetative reproduction कहते हैं. So what do you mean by vegetative reproduction? क्या होता है vegetative propagation? Vegetative propagation में it is the process of asexual reproduction in which the new plants are grown from the vegetative parts of the plant. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में से, रूट से, स्टेम से या लीफ से जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, that comes under the vegetative reproduction or vegetative propagation. So it can be done by 2 methods. एक तो natural है और एक artificial है. So all of them we have to write in this answer. So let's see the answer. Following are the methods of vegetative reproduction. First method is by roots, means the new plants that are grown by the roots naturally. Storage roots of sweet potato, Dahlia, gets detached from the parent plant and grows into a new plant. Dahlia और sweet potato की जो storage roots हैं उसमें से new plant grow करते हैं और parent plant में से detach हो जाते हैं और individual एक plant बन जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो new plant grow हो रहे हैं वो roots में से हो रहे हैं. Second, by stem. New plants can be developed from underground stems of potato and ginger. पोटैटो का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. पोटैटो, कई बार पोटैटो में आइज निकल जाती है, तो अगर हम उस पोटैटो को कट करके जितनी आइज हैं उसमें से अगर हम उसको मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे उस पोटैटो की स्टेम को, पोटैटो को, तो दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो यहाँ पर स्टेम से जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है. So it is also the method of vegetative propagation or vegetative reproduction. Third is by leaf. By leaf का common example bryophyllum है. Bryophyllum की leaf के margins में छोटे छोटे buds निकलने start होते हैं and these buds develop into a new plant. वो buds बड़े होके new plant में grow करते हैं और detach कर लेते हैं अपने आप को original leaf से. So new plants develop from the buds that grows in the margins of leaves. Leaves के margin में जो buds grow होती हैं उससे जो new plants develop हो रहे हैं, that are vegetatively propagated through leaf. Now by artificial methods, ये 3 तो natural methods थे, अपने आप ही grow हो रहे थे यहाँ पे plants. Now by artificial methods. Artificial methods से कैसे grow कर सकते हैं? This also covers 3 methods, that is cutting, layering and grafting. So first method is cutting. Cutting of stem with nodes when buried in the soil develop into a new plant. Example, rose and sugarcane. Sugarcane या rose एक common example है. मैंने आपको बताया था अगर कोई भी sugarcane और rose के plant की आप stem को cut करके, स्टेम कैसे लेनी है जिसमें नोड्स प्रेजेंट हो, बिना नोड की नहीं लेनी. पता चला आपने 2 नोड के बीच की स्टेम ले ली तो आपका न्यू प्लांट ग्रो नहीं होगा. नोड वाली स्टेम कौन सी होती है? लाइक ये एक स्टेम है, यहाँ से जो लीफ ग्रो कर रही है और इस पार्ट से, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये नोड होते हैं और ये बीच का जो पोर्शन होता है वो इंटरनोड. तो हमें इंटरनोड वाला पोर्शन नहीं लेना है, हमें ऐसी स्टेम की कटिंग लेनी है जिसमें एटलीस्ट 1 या 2 नोड्स प्रेजेंट हो, क्योंकि यहीं से जो है वो लीव्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगी. ठीक है, अगर नोड ही नहीं होगी तो लीफ कहाँ से ग्रो करेगी? तो हमें ऐसी स्टेम लेनी है जिसमें नोड्स प्रेजेंट हो, और जब हम उसको सॉइल में ग्रो करेंगे तो वो एक न्यू रोज प्लांट में, वो कटिंग न्यू रोज प्लांट में डेवलप हो जाएगी, या शुगर केन जिसकी भी हम स्टेम लेंगे.
Second method is layering. Layering is a method in which the branch of a plant is bent and covered with moist soil. इसमें मैंने बोला था आपको एक ऐसी ब्रांच लेनी है प्लांट की जो बहुत बड़ी हो, उसका हमने जो मिडिल पार्ट है उसको मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करना है। मीन्स ब्रांच जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, ये आपकी एक लंबी ब्रांच है, इसको हमने ऐसे इसको सॉइल में ग्रो करना है, ये पोर्शन सॉइल के अंदर आता है, with through which roots develop and grows into a new plant। तो इसमें से क्या होगा, ये सॉइल के अंदर के पार्ट में रूट्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगी और ये वाला जो प्लांट है ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा और यहाँ से ये अपने आप को डिटैच कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है बाय लेयर, इसकी जो लेयर है हमने सॉइल में उसको कवर किया है। And jasmine and bougainvillea are the plants which can be grown through this method. Last is grafting. Grafting is a small branch of plant which is scion is inserted into a cut made in a rooted stem which is the stalk and is tied together to develop a new plant. इसमें मैंने आपको बताया था हमने एक प्लांट लिया जो रूटेड है, रूटेड मतलब पॉट में लगा हुआ है, रूट्स के साथ है, उसको हमने काट दिया, ठीक है। एक दूसरे प्लांट की हमने स्टेम ली, दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, स्पीशीज मतलब रोज का प्लांट है तो दोनों ही रोज के प्लांट लेंगे। एक दूसरा हमने प्लांट लिया, उसकी हमने स्टेम कट करी, तो जो रूटेड वाला प्लांट है वो हमारा कहलाता है स्टॉक और जो हम दूसरा प्लांट ले रहे हैं दैट इज दी स्क्योन। अब स्टॉक और स्क्योन को हमने इस तरीके से टाई करना है ताकि जो उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे कुछ दिनों बाद और न्यूट्रिएंट्स जो रूटेड वाला प्लांट है वो ऊपर वाले प्लांट की स्टेम को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा और उससे वो पूरा एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। So this method is known as the grafting. An example, mango, apple and citrus fruits can be grown by this method. Now this is the answer of question number 1. थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, तो आपको सब मेंशन करने हैं and you have to draw the diagram from book. ये कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के डायग्राम बुक में गिवन है। प्लीज ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली. Don't use pens for drawing the diagrams. Okay. Now the second question is write the 4 advantages of vegetative propagation. Vegetative reproduction के आपको 4 advantages लिखने हैं and this answer you have to write from the book. You have to refer book from this answer क्योंकि as it is आपको बुक में से लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं किया है but I am explaining it from the book. Now वेजिटेटिव, जहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिया हुआ है उसी में ही आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन गिवन है। तो यू हैव टू राइट दीज 4 एडवांटेजेस। 4 एडवांटेजेस पूछे हैं, यू हैव टू राइट दीज 4 एडवांटेजेस इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फर्स्ट इज plants which are not capable of producing seeds can be reproduced vegetatively. For example, banana, grapes, rose, jasmine. जिन plants के seeds नहीं होते हैं तो हम normally plant grow करते हैं तो हम उसके seed लगाते हैं, पर जिन plants के seed ही नहीं होते तो वो कैसे grow करेंगे, तो उनको हम vegetatively propagate करते हैं। Vegetative reproduction के through plants grow कर सकते हैं। Second, the offspring produced by vegetative propagation are very much similar to their parent. तो जब offspring single, क्योंकि asexual reproduction का method है vegetative reproduction, तो इसमें सिर्फ single parent involved है और single parent involvement की वजह से जो offspring है, offspring means जो progeny obtain हो रही है, जो new generation आ रही है parent में से, वो बिल्कुल exact parent की copy है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के मिक्स होके कैरेक्टर्स आते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो सिर्फ एक का ही कैरेक्टर आता है, इसलिए ऑफस्प्रिंग इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट. थर्ड इज प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन bear flowers and fruits early
अर्लियर देन द प्लांट्स रेज्ड बाय सीड्स। प्लांट्स जो हम सीड से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं उनके कंपैरेटिवली जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो जल्दी उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दी प्लांट्स दैट आर रेज्ड बाय दी सीड्स के कंपैरेटिवली वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव प्लांट्स में जल्दी ही फ्लावर आएंगे और जल्दी ही फ्रूट्स। मीन्स अगर हमें जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स चाहिए तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। Fourth is seedless variety of plants can be grown by the artificial vegetative propagation. Seedless variety of plants means अगर हमें कोई plant चाहिए जिसके हमें seed नहीं चाहिए तो seedless variety of plants हम vegetative propagation के method से grow कर सकते हैं. So these are the 4 advantages which you have to write in answer number 2 from the book. Now coming to answer number 3, which is what is sexual reproduction in plants? Plants में sexual reproduction क्या है? So the answer is sexual reproduction in plants involves the fusion of male gamete, which is the pollen grain, with the female gamete, which is the ovule, to form a zygote that grows into an embryo after many divisions. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, 1 मेल और 1 फीमेल। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पर यहाँ हम प्लांट्स की बात करें तो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट है ओव्यूल। तो जब पोलन ग्रेन ओव्यूल के पास आता है फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि जाइगोट है, जो सिंगल सेल है न्यू प्लांट का। मींस सिंगल सेल, एक ही सेल होता है जाइगोट का, फिर वो उसका बार बार सेल डिवीजन होता है, रिपीटेड डिवीजन होता है जिससे जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म होता है और फिर वो एम्ब्रियो धीरे धीरे न्यू प्लांट में डेवलप होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है। नाउ कमिंग टू द 4th क्वेश्चन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज और मैंने बताई थी कि ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है क्योंकि पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट है, स्टेमन में प्रेजेंट है, तो मेल पार्ट फ्यूजन तो तभी होगा ना जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट में आएगा। तो पहले पॉलिनेशन होता है इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। उसके बाद फिर पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट होता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आके अटैच हो गया तो उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है जो ओव्यूल तक आती है और उस पोलन ट्यूब से मेल गैमीट ओवरी में एंटर करता है, फिर ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है और तब जाइगोट फॉर्म होता है। तो पहला स्टेप इसमें पॉलिनेशन है, देन फर्टिलाइजेशन। विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या विदाउट पॉलिनेशन? जब तक पोलन ग्रेन आएगा ही नहीं उसमें ओव्यूल में और ओवरी के अंदर तब तक कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? इसलिए पहले पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। नाउ कमिंग टू द 4th क्वेश्चन, ड्रॉ अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, लेबल इट प्रॉपर्ली। फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू रेफर द बुक। फ्लावर का डायग्राम आपको बनाना है और उसको लेबल करना है, विच इज गिवन हियर एज यू कैन सी दिस डायग्राम। ये पॉलिनेशन के नीचे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। दिस डायग्राम यू हैव टू कंप्लीट और यू हैव टू ड्रॉ वेरी नीटली विद पेंसिल इन योर कॉपीज। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए हैं ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वर्क आपका ज़्यादा ना हो जाए। Please do these questions in the copy. Rest we will do in the next class. Rest questions I will explain in the rest class. So this is all for today. Thank you and have a very nice day.